how are you all? Today I am going to cover the topic जो हम मुझे लगता है हम क्लास 1 से ही डिस्कस करते आ रहे हैं स्कूल्स में, ग्लोबल वार्मिंग और उसके कॉजेस क्या हैं. Because this is the part of environment chapter, so we are supposed to pick up this topic. Before that, if you go by my notes, you will find there's one movement which is given there, CHIPCO and APICO movement. I'm sure you've heard this before also. So let's just discuss quickly about this. CHIPCO movement में क्या था कि community ने they wanted to save the trees, so that is why they hugged the trees and they never wanted कि उसे कोई काटे. So it was a message to the government that you have to kill us first before killing the trees या cutting the trees. So that was CHIPCO movement and then उसी जैसा ही एक APICO movement भी चला. अभी क्योंकि NCERT में मेंशन है इसलिए आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए जस्ट फॉर MCQ पर्पस. दिस क्वेश्चन विल नॉट बी देयर फॉर डिस्क्रिप्टिव एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि डिस्क्राइब करो सारा मूवमेंट, नहीं होगा. सिर्फ इसके बारे में MCQs क्या हो सकते हैं आप अंडरलाइन कीजिए, मैं पढ़ती हूँ साथ साथ. You may be aware of the CHIPCO movement which aimed at protecting forest. कहाँ पर ये पूछा जा सकता है? हिमालयाज में. ओके, सो CHIPCO movement कहाँ था? हिमालयाज के लिए, हिमालयाज में था, सॉरी, इन कर्नाटका. कर्नाटका में APICO movement था. ये दो बातें आपको याद रखनी है. ऑलराइट, सो इन कर्नाटका a similar movement took place with a different name APICO which means to hug. Alright. On 8th September 1983, when the felling of trees was started in Salkani forest in Sirsi district, 160 men, Sirsi district याद रखें. कुछ लोग, कितने लोग थे? 160 men थे. विमेन नहीं पूछेंगे आपसे, आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए. They actually collectively, all of them, men, women, children, they hugged the trees and they forced the woodcutters to leave from that place. When commercial felling by contractors damaged a large number of natural forests, the idea of hugging the trees gave the people hope and confidence that they can protect the forest. On that particular event, with the felling discontinued, the people saved 12,000 trees. Within months, this movement spread to many adjoining districts. So बहुत सारी जगह फिर इसको कॉपी किया गया. Alright, तो हमें जगह याद रखनी है. That is it. Okay, so let's begin with global warming. अब global warming means हमारा जो globe है वो hot हो गया है, गर्म हो गया है. उसके क्या कारण हो सकते हैं? Sea level का जो है water level जो sea में that is increasing क्योंकि glaciers melt होकर पानी सारा सी में आ गया. सो माना जाता है कि अगर इसी तरह से इसी स्पीड से डिस्ट्रक्शंस होती रही और वार्मिंग बढ़ती रही तो एक दिन सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा. हम सब सुन चुके हैं, हम सब जानते हैं. हाँ जी, तो ग्लोबल वार्मिंग में लिखेंगे क्या? दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेबस, क्योंकि अभी हम वो इमोशनल एस्पेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं. ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सॉरी, अर्थ्स लोअर atmosphere and ocean as a result of the increase in greenhouse gases since the industrial revolution. Okay, during the past century the atmospheric temperature has risen by 1.1 Fahrenheit, which is 0.6 degrees Celsius, और sea level has risen several inches. मैंने अभी बताया sea का level बढ़ गया है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी बन गए हैं. Much of the recent observed and projected global warming is human induced. मतलब it has happened not because of nature, it is just because of man. Okay, so human induced है. Some of the longer term results of global warming are क्या क्या है? Melting of polar ice with a resulting rise in the sea level and coastal flooding, disruption of drinking water supplies dependent on snow melts, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज जो वहाँ हैं. कौन सा? पोलर बेयर की बात कर रहे हैं हम. एज इकोलॉजिकल निशेस डिसअपीयर, सो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गई. मोर फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स, एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज जैसे कि मलेरिया, कॉलरा, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब प्रॉब्लम्स भी वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो बढ़ गए. इनके इंसिडेंस जिन्हें हम ट्रॉपिकल डिजीजेस कहते हैं वो बढ़ गए.
कारण क्या है? वैसे तो हम सब जानते हैं, हमारे एसी, हमारे रेफ्रिजरेटर, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि व्हाट डू वी रिलीज CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ही हम इसमें सब ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, ये सब बातें आप इसमें क्लब करेंगे सिस्टमैटिकली। इट इज कॉज्ड बाय मैन मेड, अंडरलाइन करते जाओ कीवर्ड्स, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स रखिए। मैन मेड है, increase in carbon dioxide and other greenhouse gases through the burning of fossil fuel and deforestation. Okay, adding carbon dioxide, methane and such other gases that have the potential to absorb heat to the atmosphere. हमने ये सारी gases जो है वो atmosphere में डाल दी हैं, with no other changes will make our planet's surface warmer. Among factors that may be contributing to global warming are, कौन-कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम को बर्न करना, तो जब हम कोल जलाते हैं उससे भी बहुत तरह की गैसेस निकलती हैं। So burning of coal is the source of carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, everything. Deforestation में, which increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere. मीथेन गैस कहां से आएगी? एनिमल वेस्ट से, वो भी रिलीज हो रही है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन which contributes to deforestation, methane production and fossil fuel का use is also one of the causes. Okay, एक बॉक्स पे मैंने आपको ये एक इंफॉर्मेशन दी है जो एनसीईआरटी में है, जो आपको पता होनी इम्पोर्टेंट है as far as MCQ is concerned. So UN कॉन्फ्रेंस मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है। US कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ हुआ था? याद रखना है, जापान में, क्योटो में। कब हुआ? 1997 में। क्या किया? इट इज रिजल्टेड इन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग व्हिच कॉल्ड फॉर रिडक्शन। अब क्योंकि हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ गए हैं, उनकी एमिशन के बारे में था, तो उसको रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं। तो इसके बारे में क्योटो में, जापान में एक कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज यूएन कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज ऑन क्लाइमेट चेंज। मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एंड दे डिस्कस्ड हाउ कैन वी सेव आवर वर्ल्ड, क्योंकि अब रिसोर्सेज नेशन लेवल पर डिस्कशन नहीं होते, ऐसे प्रॉब्लम्स ग्लोबल लेवल पर डिस्कशन होते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग and its causes. Next video I will cover ozone depletion and the rest of the chapter. All right, bye bye, take care.